नमस्कार, स्वागत है आपका पर्यटन एनजीओ में। और पता है कि आपको जैसे कि पर्यटन एनजीओ ग्राउंड ज़ीरो पे काम कर रहा है और इसी काम का साक्षी बनने के लिए आए हैं लंदन से एलन। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन के डीन हैं, डीन ऑफ आर्किटेक्ट हैं और भी कई डिपार्टमेंट का चार्ज सर के पास है। और काफ़ी समय से सर और इनकी टीम है पर्यटन के साथ जुड़ी हुई है। और यहाँ पे जो पर्यटन के लिए जो बिल्डिंग बननी है उसका आर्किटेक्ट किस तरीके से एक बेहतरीन निर्माण हो सकता है, शिक्षा का निर्माण हो सकता है, उसके लिए इसका दौरा करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र सिंह दहिया सर ही हैं। वो आपको एक बार थोड़ा-सा बता देंगे कि यहाँ पे क्या होने वाला है, किस कारण सर यहाँ पे आए हैं, फिर हम सर के व्यूज़ जानेंगे। तो डॉक्टर साहब एक बार आप बता दीजिए हमारे दर्शकों को, हमारे टीम के मुख्य सदस्य हैं जो इस पूरे इनिशिएटिव को लीड कर रहे हैं। डॉक्टर देवेंद्र सिंह दहिया हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब। धन्यवाद अनिल। एलन इज डीन ऑफ रिसर्च इन यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन और मटेरियल इंजीनियरिंग के ये एक्सपर्ट हैं। इनकी जो पूरी टीम है उसमें आर्किटेक्ट भी हैं और जो मटेरियल यूज़ हैं सस्टेनेबल बिल्डिंग्स के लिए ये शुगर क्रीट पे काम कर रहे हैं, जहाँ शुगर केन प्लस चूने को मिला के ईंट बनाई जा रही हैं और वो उसको रिप्लेस करेंगे जो हमारे ट्रेडिशनल हैं, वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं। और जो यहाँ पे हम बिल्डिंग प्लान कर रहे हैं उसके बारे में ये साइट देख के और अपने जो स्टूडेंट हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के आर्किटेक्ट के और मटेरियल इंजीनियरिंग के, उनको आगे जाके डिज़ाइनिंग और जो मटेरियल ऑप्शंस हैं उनके बारे में ये आगे फाइनल करेंगे जैसे जैसे हमारा आगे इनसे कम्युनिकेशन होता रहेगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि पर्यटन किस तरीके से जो चीज़ें प्लान कर रहा है, तो हम सबसे पहले एलन सर का एक्सपीरियंस जानेंगे कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन द पर्यटन ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ डज इट अपील, हाउ वाज द विजन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्क as you have gone through about the work and the module of this organization. So first we would love to know about your experience for the Paryatan organization which is working for the education of underprivileged students. It's been a real privilege to come here. We first made contact over the internet and found out from Anil about the work that you were doing, and we were very keen with our invention of the material sugarcrete, which uses sugarcane waste, which is grown in Uttar Pradesh, which we are manufacturing now in India. We wanted to make sure that it was used in a way which benefits people and that allows people to achieve architecture and building that is safe and it performs well and it kind of belongs to them. And this was an ideal opportunity for us to be able to reach out and to collaborate in a new project. And coming here has been a real privilege. I've visited the centre, I've seen the children in the centre, and it's really quite inspiring. It's hard to find the words. So I'm really, really pleased to be here. The project that we have here, we have a beautiful model over here. It really speaks to the way in which the education can be transparent, that everyone can participate, and that the building allows everyone to see and be able to enter into that education and find the thing that they really want to do in their lives. And I think that educational model is something that we really respect. My university in East London teaches people whose parents have never been to university and who never thought they would go to university, and it aims to give them that opportunity. So to be able to take that idea and see it here working so well is a real privilege for us to be a part of. So thank you very much, Anil, for inviting us. Yeah, thank you so much, sir. And you also have gone through the modules that or how modular works without any teacher, and we don't have any teacher in the organization. And you have seen that how we are involving the student. We have designed a uniform model for every student, either he's intelligent or not intelligent. So if you have any few words, so that the other people will also visit over here to see the module. So please, I would love that if you could speak few words for the module, so that the more and more people come over here to visit this module and support these children. I think in a way the key idea is respect. It's respect for each individual's potential, and it's organizing education so that those individuals can find what they're good at
and follow it and be supported. And this idea that people can gather around and help them on that journey, not from a position of height, but a position of equality, and be able to share that journey and to encourage and support them and use the skills that they have to encourage those skills in others. That kind of very horizontal level, equal platform for education is really quite unique, and it's something we're really, really pleased to support. So in the coming year, my students in London, who are from all over the world, who come to London to study, will be studying about this project, and we'll be designing buildings, we'll be inspired by this curriculum so that we can design projects maybe one day that will get built, which will have an ambition to them that can include the benefits that Anil and his modules have put together for the community here. And we'll take that as an inspiration for our design work this year. थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स एलन. एंड ताराचंद जी है हमारे पास, हमारे साथ, जो हरदम पर्यटन के साथ रहते हैं. अपने आप में एक इंस्पिरेशन है, एक इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है. तो सर, कुछ शब्दों में मैं आपसे भी जानना चाहूँगा पर्यटन के बारे में, और 2 शब्द आपकी तरफ से. जो पर्यटन, नाम ही पर्यटन है, और जो प्रोसेस आपने शुरू कर रखी है, और उसी कड़ी में जो डेवलपमेंट की हो या इक्वल एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी हो, तो एलन सर आए हैं यहाँ पे, तो वो आपके प्रयास और इन लोगों की जो बेसिक जो नीड है वो उसकी पूरी कर रहे हैं. उसके लिए आप सैल्यूट के काबिल हैं. इतने शब्दों में मैं काफ़ी बातें मैं कह चुका कि कोई शब्द ही नहीं है. थैंक यू ताराचंद जी. और जैसा कि दैया सर हमें लीड कर रहे हैं, और हमारे जो मैं कहूँ कि कोऑर्डिनेटर है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के छात्र हैं दीक्षांत और अंकित, सुमित, ये दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और भी इनके जो टीममेट्स हैं वो हमारे साथ काम कर रहे हैं. और दैया सर इन बच्चों के बारे में, क्योंकि इन्हीं के छात्र हैं, ये बताना चाहेंगे. और बड़ा प्राउड मोमेंट होता है एक टीचर के लिए जब ऐसे ऐसे बेहतरीन बच्चे आगे निकलते हैं. दीक्षांत और सुमित और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो पर्यटन से इन्होंने ग्रुप बना रखा है, 100+ स्टूडेंट हैं जो अपने ग्रुप बना के ये पर्यटन के स्टूडेंट्स की पर्टिकुलरली वीकेंड्स पे आके टीचिंग और जो अदर मैनेजमेंट के काम है उनको देख रहे हैं. और जो बच्चे हमारे स्टूडेंट हु वांट टू विजिट अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज, so we asked them to connect with them, and Dikshant along with other students did all the communication with the Ellen and team regarding their visit, regarding their stay, regarding the work done by the Paryatan, and he also arranged an online meeting with faculty from Ellen Department University, East London University, HAU faculty members, HAU students, Paryatan team, and the architect who are supporting us in this project. So that was a very marathon meeting for 1.5 hours, and we discussed each and every aspect. And our second member from Ellen team, Mr. Dr. Harmar, he is also very keen to visit us. So we hope that he will be visiting soon in the coming months, and we invite you through you also. You or any team member, whosoever want to come, you are always welcome. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब. और मैं कुछ ही शब्द से जानूँ, वीडियो लंबी बहुत हो जाएगी. दीक्षांत, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है बीइंग एन स्टूडेंट, और बच्चों को क्या कहना चाहेंगे चंद शब्दों में? अब बीइंग अ स्टूडेंट, हमारा काम सिर्फ ये नहीं है कि हमें एजुकेशन लेना है, देन इसके साथ साथ हमें ये भी करना चाहिए कि हमें जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं या फिर जिनके पास एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, हम उनको भी मेन स्ट्रीम में लाने का काम करें. तो मैं और भी जो मेरे फेलो स्टूडेंट्स हैं उनको बोलना चाहूँगा कि आप भी आएँ, पर्यटन के साथ जुड़ें और इन बच्चों की एजुकेशन के लिए काम करें. थैंक यू सो मच दीक्षांत. और राजकुमार सर हमारे साथ हैं, और भी साथी जो सर हैं, जो मैं कहूँगी ये स्पेशल उत्तर प्रदेश से आए हैं. सर, एक बार आप आ जाइए, कैमरे के सामने आ जाइए. और सर राजकुमार जी काफ़ी समय से जुड़े ही हुए हैं. तो सर, कुछ शब्दों में, आप चंद शब्दों में, मैं चाहता हूँ कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और आपने जो अनुभव किया है पर्यटन के बारे में, वो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? देखिए, प्रयत्न जो आप लोग चला रहे हैं और जो आप लोग का है
थीम लाइन जो है कि बदलाव बहुत आराम से और धैर्य से धीरज से आता है, मुझे लगता है कि वो प्रयत्न वही काम कर रहा है। और समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना और उस जाति के पास जाना जो घुमंतु है, जिसके पास पता नहीं आधार कार्ड है कि नहीं है, वोटर आईडी कार्ड है कि नहीं है, उनके बच्चों को पढ़ाना और समाज के तमाम कुरीतियों से उन बच्चों को निकाल कर, और जिस तरह से आप लोगों ने निकाल कर एक बच्चे को जो शायद चाकू चलाता था उसको अपने साइबर उसमें लॉज में उसमें लेके गए आप लोग, और वो इसमें बैंगलोर में जाके पढ़ रहा है। कुछ बच्चों से मिला जो जर्मन भाषा सीखे हैं और जर्मनी जाने वाले हैं, तो काफ़ी अच्छा अनुभव है। और किस तरीके से लड़कियों के बीच में आप काम कर रहे हैं, जो बच्चियों के बीच में कर रहे हैं, मुझे लगता है एक साइलेंट रेवोल्यूशन मैं इसको कहता हूँ। हिसार में एक साइलेंट रेवोल्यूशन चल रहा है, जिसके एक सूत्रधार आप हैं, एक सूत्रधार राजकुमार जी हैं, एक सूत्रधार भैया जी होंगे, इसी तरह बहुत सारे अन्य लोग भी हैं जो कार्य कर रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि हिसार में इस तरह का कार्य हो रहा है, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये प्रयत्न एक बहुत बड़ा एक मॉडल भी पेश कर सकता है विश्व के सामने, देश के सामने, जिस पर चला जा सकता है कि स्कूल ड्रॉप आउट्स जो हो रहे हैं उससे बचने के लिए किस तरीके से नए नई योजनाएं ला सकती हैं सरकारें और पार्टियों को। ये सोच और समझना चाहिए। और आपसे ज़्यादा मुझे तो, हम तो पार्टी से भी हैं, तो हम तो ये चाहेंगे कि आप जैसे लोगों के साथ लगातार संपर्क में भी रहें। जी बिल्कुल, मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे जो आते हैं, मैं कहता हूँ कि कोई भी आए, पार्टी आए, चाहे एक इंडिविजुअल आए, बस इन लोगों को अपलिफ्ट करे। हर एक नागरिक, मैं कहूँ इक्वालिटी की बात करे, बराबरी पे आए। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और वक्त हमारे पास काफ़ी है। सर, चंद शब्दों में आपका अनुभव। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो 70 सालों में भी हमारी सरकारें नहीं कर पाई हैं, जिस हाशिए पे रहे लोगों के लिए जो ये कार्य पर्यटन संस्था कर रही है, एनजीओ कर रही है, वो बहुत पहले स्टार्ट हो जाने चाहिए थे, और ये सरकार का और समाज का आधा काम एनजीओ कर रही है, और इसकी उन्नति के लिए हम इनकी शुभकामनाएं और विश्वास दिलाते हैं कि हम साथ लग के ये काम करेंगे। थैंक यू सो मच सर। सर, आपका अनुभव कैसा रहा है? सर, मैं तो निःशब्द हूँ इसे देख करके कि निचले पायदान पे जो काम सरकारों को करना चाहिए था, और आज ये प्रयत्न जो संस्था ये काम कर रही है, वाकई मतलब काबिल तारीफ़ है, और जिसकी जितनी तारीफ़ करी जाए उतनी कम है। और इसको जितना सहयोग कोई दे सकता है तो इस दे करके, और मैं चाहूँगा कि ये पूरे देश के अंदर एक ये मॉडल ये बनना चाहिए। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि सभी वक्ताओं ने बताया पर्यटन के बारे में और किस तरीके से यहाँ पे बदलाव हो रहा है, और मैं कहता हूँ कि आप भी आइए और मिलकर बदलते हैं और बदलाव का हिस्सा बनिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।